Hi everyone, again most welcome to all in this channel and my name is Purnish Sharma, BTech second year student in SIRT college. In this video, I will guide you how you should prepare your academic portion on your college, right? If you're already first year of the college right now, RGB affiliated any kind of the college, but almost the syllabus is same. So how you should prepare the first year academic stuff, right? So this video is not going to be some kind of the actual ज्ञानी बाबा tips और actual जो थ्योरी बुक्स में होती है कि ये कर लो ये कर लो. दिस इज गोइंग टू बी माई पर्सनल एक्सपीरियंसेस व्हाट आई हैव डन एंड व्हाट माई अप्रोच to be prepared for the exams and how I actually did this in a very less time. You might not believe that uh, I have uploaded almost all those academic stuff only during the exam period. हर एग्जाम के बीच में 4-5 दिन का गैप्स होता था. That was very enough for me to understand the concept, topics, make a notes, and just right after that record a video and upload during only the exam period, which was around 1 month का time. ठीक है. So that was I actually how I did this. ठीक है. I will tell you that and my approaches and second one that is कि कौन सी YouTube चैनल आपको फॉलो करना चाहिए and the last thing how you should write the paper. ठीक है. This video is not going to be a very theoretical, that actually implementation that I have did throughout my experiences, right? And to the very end of this video I will reveal how much SGPA, how much CGPA I got. Okay, so my personal experiences I have put in this video. I hope this video is going to be way more beneficial for you as much as possible, right? So if you like this video, please hit the like, subscribe button and share with your friends. So let's get started. So now the first thing that I wanted to tell you that why academics is important, right? I know most of the student, almost 95% of the student are very neglect mindset कि academics is not more important. You should definitely almost neglect this. ठीक है. During the exam period you can prepare. This the another types of the approaches they could apply. ठीक है. But why this is way more important? Why 7 CGPA, 8 CGPA is important? Now the first thing that is your own campus opportunity. You might heard that if your CGPA is good, you will get more opportunity on your own campus, right? Because off campus is very competitive, but it will give you the on campus opportunity if your academics is good. Now second one thing that is CGPA does not define your future, but actually why is important that let's give me a clarity through example. Let's suppose you are a cricketer, right? You are very master on batting, right? You are a very experienced top notch level in batting, right? But you are not good, at least not even a decent level in a bowling. So can you believe will you be selected in the cricket match? Obviously the chances will be very low. I'm not telling you will not be selected, the chances will be absolutely very low, right? So you have to be prepared both cases. The same cases always happen in the academics. Your academics is important, right? Now the another point it could say you have a lots of pressure, right? You will learn a lot more thing in the college. Despite of all of the pressure, if you did your academic portion, this will signifies you how much you are hardworking person, right? So these are the things, these are the point which is important for your academics and you can never neglect that, right? Okay, so this is what we are actually important your academic portion. Now coming to the second point, that is what my approaches that I have followed for preparation my exams, and this approaches is continuously going on. But if you're a first year student, uh, just watch this, right? आई बेट कि यू आर वेरी फेमिलियर विथ योर जो सिलेबस है. आपको अपना सिलेबस तो पता ही होगा ना कि फर्स्ट सेमेस्टर में जो मेरा जो था फर्स्ट सेमेस्टर में था बेसिक सिविल, बेसिक मैकेनिकल, M1 था, बेसिक कंप्यूटर था, इंग्लिश था. एंड सेकेंड सेमेस्टर में मेरा M2 आ गया था, फिर केमिस्ट्री, फिर BEEE, इंजीनियरिंग, ड्राइंग हो गया. तो इस तरीके के सब्जेक्ट्स थे. आई नो यू आर वेरी फेमिलियर विथ योर एकेडमिक पोर्सन. सो व्हाट माय अप्रोच इज, now I wanted to categorize all those syllabus in two portion. Listen to this. The first one is the theory portion and the second one is the numerical portion, right? So the theory portion, what I actually did, I don't watch any YouTube videos for only theory. I go to the chat GPT or Perplexity. These are the two AI tools which is best. I have tried out more different AI tools, but chat GPT is more familiar in the communication terms. It will make you give it will give you more clarity, right? So for the theory portion, I just go chat GPT and put any kind of the question, any kind of the theory question, right? कि जैसे कि डीसी वर्क मशीन मतलब डीसी मोटर कैसे वर्क करता है,
इसका मतलब क्या है? जैसे ओप्स में कोई भी टर्मिनोलॉजी आ गई, जैसे कि एनकैप्सुलेशन क्या है, ठीक है? उसके बाद कुछ भी कोई भी थ्योरी क्वेश्चन हो गया, ठीक है? एनी काइंड ऑफ द थ्योरी क्वेश्चन, जस्ट गो चैट जीपीटी एंड आस्क देम एंड टेल देम कि एक्सप्लेन द टॉपिक इन अ वेरी सिंपल वर्ड्स। अगर आपको और भी नहीं समझ में आता तो और भी सिंप्लीफाई वर्जन उससे मांग सकते हैं, ठीक है? सो दिस इज हाउ यू कुड प्रिपेयर योर थ्योरी पोर्शन, एंड दैट इज वाई दिस इज एग्जैक्टली सेम things I applied in my exams. I just paste the question on ChatGPT, and the answer this is the tool generated. This is very simplified version and very understandable format, right? So I did this, and but preparation the notes I took references from different sources as well. जैसे कि RGPP notes हो गया, शिवानी हो गया, just for reference checking, ठीक है? Then I write word to word a scripting answer. So but it gives you more clarity on the theory portion, right? So go on that. Now the second one is that is numerical portion. Numerical portion comes with those kind of the subject है, जैसे कि सिविल का न्यूमेरिकल हो गया, बीएमई का न्यूमेरिकल हो गया, और बी ट्रिपल के न्यूमेरिकल हो गए, केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल हो गए, M1 M2 और ED, ठीक है? These are the channel, these are the subjects which is numerical portion, and I recommend you that do not use any AI tool, GPT tool in terms of the numerical, because you will get more confused. Instead of this, you should definitely follow the YouTube channels or your college teacher if they are very good styling teaching. तो you should definitely follow your teacher और your YouTube channel, क्योंकि यहाँ पे आपकी प्रैक्टिस डिपेंड करती है. द मोर यू गिव प्रैक्टिस, द मोर यू गेट मोर क्लैरिटी. तो न्यूमेरिकल पोर्शन के लिए मैं आपको कुछ चैनल रिकमेंड करता हूँ. तो अगर आपको मैक्सिमम 3-4 पॉपुलर चैनल है, आप डेफिनेटली जाकर चेकआउट करें. जो मेरे पर्सनल रिकमेंडेशन है, whom आई हैव फॉलोड एंड स्टडीड, राइट? फॉर जैसे कि सिविल के लिए, बेसिक सिविल इंजीनियरिंग के लिए और इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए आप मानस पटनायक का चैनल फॉलो करें, ठीक है? मैंने भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट, बहुत सारे टॉपिक्स न्यूमेरिकल के उनसे ही पढ़ा था. उसके बाद टिकलेस एकेडमी जो है, जो ऑलराउंडर है, और वो बहुत ही स्क्रैच से, बेसिक से दे एक्सप्लेन एवरी टॉपिक, ठीक है? तो आप टिकलेस एकेडमी पर भी जाए. एंड उसके बाद मैथमेटिक्स के लिए मैथमेटिक्स 1, मैथमेटिक्स 2 के लिए वैसे बहुत सारे टीचर हैं. मेरे जो पर्सनल टीचर है, जो मेरे पर्सनल रिकमेंडेशन है, जो गजेंद्र पुरोहित सर है, जिन्होंने बहुत टू द पॉइंट, और बहुत उनके शॉर्ट वीडियो होते हैं और टू द पॉइंट होते हैं, रियल एप्लीकेशन बेस्ड होते हैं. फॉर्मूला ये है, अप्लाई करो, योर सवाल विल बी कंप्लीटेड, ठीक है? तो गजेंद्र पुरोहित विच इज़ माई वेरी फेवरेट, बिकॉज कि मैंने उन्हें बहुत ज़्यादा फॉलो करा है. तो मैथमेटिक्स 1, मैथमेटिक्स 2 के लिए आप उनको फॉलो करें, ठीक है? तो यहाँ पे हो गए, ठीक है? इस तरीके से आप अपने एकेडमिक्स को प्रिपेयर कर सकते हैं. जो मैंने करा था फॉर द थ्योरी पोर्शन, आई डिड चैट जीपीटी, और उसके बाद मैंने कुछ रिसोर्सेज पढ़े, फिर वर्ड टू वर्ड स्क्रिप्टिंग किया, तो मेरे बहुत सारे थ्योरी सवाल हो गए थे. आपने देखा होगा मैंने नोट्स में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा था, ठीक है? उसके बाद न्यूमेरिकल पोर्शन के लिए आप चैनल्स को फॉलो कर सकते हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज दैट कि आपने तो पढ़ रहे हैं, बट सेल्फ नोट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ये क्यों इंपॉर्टेंट है? कि मैक्सिमम जो है वो टीचर के नोट्स पर डिपेंड हो जाते हैं, जो कि बहुत ही सही है ना. अगर टीचर के नोट्स आपको समझ में आते हैं तो विच इज़ वे मोर इंपॉर्टेंट. बट आई पर्सनली बिलीव इन सेल्फ नोट, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि खुद का एक नोट्स बनाना, ठीक है? तो मैंने पर्सनली ये फॉलो किया है. मैंने नोट्स हमेशा बनाए हैं सिर्फ कॉलेज को दिखाने के लिए, जो बहुत ही गंदी हैंडराइटिंग में सिर्फ क्वांटिटी फिल्ड नोट्स होती है, ठीक है? सिर्फ दिखाने के लिए होती है, ठीक है? मैंने खुद का एक पर्सनल नोट्स बना रखे जो कि पेपर में पेजेस में लिखता था और अपलोड करता था. तो मैं सेल्फ नोट्स पे विश्वास करता हूँ, ठीक है? और यहाँ पे सेल्फ नोट्स बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एनी काइंड ऑफ द थ्योरी क्वेश्चन, ठीक है, जो कि 7 नंबर के होते हैं, और आप उसको जीपीटी से और अदर एआई टूल से समझ करके और फिर रेफरेंसेस से पढ़ करके बनाए, तो इसमें आपको अराउंड 3 घंटे लग सकते हैं. आई एम एज्यूमिंग कि 2 से 3 घंटे लग सकते हैं सिर्फ एक क्वेश्चन को बढ़िया से पढ़कर समझने में, ठीक है? और बढ़िया एक नोट्स बनाने में. तो यहाँ पे 3 घंटे 2 घंटे एज्यूम करूँ. और इस तरीके से देखो, मोस्टली जो मैंने आरजीबीपी के जो पेपर्स देखे हैं फर्स्ट ईयर के, फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर दोनों को मिला करके, तो वो रिपीटेटिव होते हैं पीवाईक्यू से, प्रीवियस ईयर से. मैक्सिमम 80% रिपीटेटिव होते हैं. तो अगर आप 20-25 क्वेश्चन हर सब्जेक्ट को तैयार कर लो, जिसमें से न्यूमेरिकल और थ्योरी दोनों हो, शायद थ्योरी पोर्शन बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है? तो थ्योरी पोर्शन 2-2, 3-3 घंटे लगा करके अगर आप एक थ्योरी क्वेश्चन को दाएं बाएं चारों तरीके से समझ लेते हो, तो यहाँ पे आपको कितने घंटे टाइम लगेंगे? 20, 23, 60 घंटे. मान के चलो 100 घंटे, पूरे 6 सेमेस्टर, पूरे एक सेमेस्टर में आपको 100 घंटे सिर्फ एक सब्जेक्ट का आप कर लोगे. एटलीस्ट मैं प्रैक्टिकली शायद मैं बोल रहा हूँ, ठीक है? इसलिए मैंने वो सिर्फ एग्जाम के टाइम पीरियड पर ही मैंने पढ़ा था. हाँ, ये बात इंपॉर्टेंट है कि कॉलेज में अटेंडेंस पूरी करनी रहती है ना, 75%, तो मैं जाता रहता था. तो बस मुझे सिलेबस के आइडिया रहते थे, सब टॉपिक्स के आइडिया रहते थे, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, ये इंपॉर्टेंट होते थे. तो इस तरीके से मैंने थ्योरी पोर्शन के नोट्स बना लिए थे.
उसके बाद जो मैथमेटिक्स हो गए, ईडी हो गया, उनकी प्रैक्टिस के लिए मैं यूट्यूब चैनल्स पे जाता था और प्रैक्टिस किया करता था। तो वो टॉपिक्स को मैं लिख लेता था। इस तरीके से आपके सेल्फ नोट्स हो जाएगा। सेल्फ नोट्स पे मैं विश्वास करता हूँ, आप सेल्फ नोट्स ज़रूर बनाना, जो आपको बहुत हेल्प करेंगे, ठीक है? उसके बाद जब आपने सेल्फ नोट्स बना लिया, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट कि आप थोड़ा क्वेश्चन का एनालिसिस जरूर करें, पैटर्न रिकॉग्निशन, जो कि आप अगर टाइम है तो जरूर करें, ठीक है? टाइम है तो पैटर्न रिकॉग्नाइज जरूर करें कि अगर आपने जो 25 क्वेश्चन जो सिलेक्ट किए हैं तो उसमें से 5 या 10 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे, या फिर कि अगर पिछले सेमेस्टर में नहीं लड़ा तो वो इस सेमेस्टर में जरूर लड़ेंगे। तो कुछ आप पैटर्न रिकॉग्निशन मिलता है जब आप 20-25 क्वेश्चन तैयार कर लेते हो ना, तो पैटर्न रिकॉग्निशन मिलता है कि हाँ चलो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होती है, ये क्वेश्चन नहीं होती है। वैसे मैंने करा, मैंने बहुत सारे क्वेश्चन मुझसे मैच करे थे, ये अलग बात है शायद मैंने अपलोड नहीं करा था, ठीक है? मैंने कन्फर्मली अपलोड ही नहीं करा था, बट मुझे करना चाहिए था, बट बहुत कम टाइम था उस टाइम। तो आप पैटर्न रिकॉग्निशन तब मिलेगा जब आप क्वेश्चन को प्रिपेयर कर लोगे, चाहे प्रिपरेशन करने के दौरान में आपको पैटर्न रिकॉग्निशन मिलता रहेगा, जो आपको ज़्यादा क्लैरिटी देती रहेगी, ठीक है? तो ये क्वेश्चन मुझे ज़्यादा ध्यान देना है कि हाँ चलो, आउट ऑफ 20-25 में से दिस 5 और 10 क्वेश्चन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी क्रूशियल फॉर माई मेमोराइजेशन, ठीक है? ये कर लिया ना। अब जब हम आते हैं कि हमारे पास नोट्स हो गए, ठीक है? नोट्स हो गए, हमने थ्योरी और न्यूमेरिकल पोर्शन भी कर लिया है। आज के एआई में तो एआई टूल्स है, तो बहुत तरीके से हमने चीज़ों को समझ लिया है, ठीक है? मैं ज़्यादा टाइम कभी भी वेस्ट नहीं किया है थ्योरी लेक्चर्स को देखने में, बहुत ही भटकाऊ टाइप के होते हैं यूट्यूब चैनल्स, और मैं बहुत भटक जाता था। बट बाद में मैंने एआई टूल पर स्टिक करा, जस्ट स्टिक विद द चेयर एंड जस्ट हैंग आउट 1 आवर 2 आवर विथ योर टूल्स एंड अंडरस्टैंड द टॉपिक्स कॉन्सेप्ट, ठीक है? और न्यूमेरिकल पोर्शन के लिए यूट्यूब। नाउ द लास्ट एंड इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट कि हाउ यू शुड राइट योर पेपर ऑन योर एग्जाम्स, राइट? आपको आंसर राइटिंग कैसे करनी है, दिस पोर्शन आई वुड से इन माई पर्सनल रिकमेंडेशन इज वे 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 मोर इम्पोर्टेंट, ठीक है? तो इसमें आपको 3-4 चीज़ें ध्यान में रखनी है जब भी आप नोट्स बनाओ ना। मैं नोट्स कैसे बनाता था, ये यही बात का ही आंसर है। मैं नोट्स कैसे बनाता था, पहली बात, राइट द ऑल द इन्फॉर्मेशन इन योर पॉइंट्स, क्योंकि टीचर के पास भी खुद का समय नहीं होता है, वो हम ही जैसे इंसान होते हैं जो पेपर चेक करते हैं, ठीक है? और ये सही बात है, उनके पास बहुत कम समय रहता है और प्रेशर में ही उनको कॉपी चेक करने रहते हैं। वो बस वैसे भी शायद सुना है, वैसे बहुत कम पैसे ही भी मिलते हैं, छोड़े इस बात को। पर उनको कॉपी चेक करने के लिए बहुत कम समय रहता है। तो इस केस में अगर आप कोई चीज़ आपको पैराग्राफ में हो, उसको अगर बदले में अगर आप पॉइंट्स में लिखो, बुलेट पॉइंट्स में, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है? पहली पॉइंट आप ध्यान में रखो पेपर आंसर राइटिंग में। दूसरी चीज़, आपके पास कॉपी में क्वांटिटी होनी चाहिए। अगर आप वैसे स्टूडेंट हो जो नहीं पढ़े हो तो ऑब्वियसली आप एक्सपेक्ट कम ही मार्क्स का करोगे, और लेकिन अगर आपने पढ़ा है तो पेपर में क्वांटिटी तो होनी चाहिए। जैसे कि अगर मैं बात करूँ 7 मार्क्स का जो क्वेश्चन है, तो वो 1.5 पेजेस तो लेगा, 1 से 1.5 पेज लेगा, 1 पेज नहीं लेकिन 1.5 से 2 पेज तक जा सकता है, ठीक है? तो 1.5 से 2 पेज तक का लेंथ उसकी होनी चाहिए। तो पहली बात क्वांटिटी, दूसरी बात वो बुलेट पॉइंट्स में होनी चाहिए, तीसरी बात उसमें कुछ चीज़ों को आप अंडरलाइन कर सकते हो जो भी पॉइंट्स आता है, जो कि एक्चुअली में मैंने किया, ये तीसरी बात। चौथा पॉइंट, डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना आप चीज़ों को विजुअली रिप्रेजेंट करो, थ्योरी चाहे अलग, बट आप चीज़ों को जितना ज़्यादा विजुअली रिप्रेजेंट कर पाओ, जैसे कि लेथ मशीन का डायग्राम हो गया, ठीक है? आप डेटा स्ट्रक्चर के टाइप्स हो गए, तो इन चीज़ों को डायग्राम के साथ और विजुअली जितना अपीलिंग करने की कोशिश करोगे ना पेपर्स को, तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। वो पेपर पर एक अच्छा एक्सप्रेशन देता है। ये 4-5 साइकोलॉजी बोल सकते हो, 4-5 कुछ ऐसे तकनीकें बोल सकते हो जो कि आपको करने ही करने, भले आपके पास इन्फॉर्मेशन कम हो, बट इस तरीके से अगर आप ध्यान में रख करके एटलीस्ट पेपर को अटेम्प्ट करते हो तो हाई चांसेस यू विल गेट गुड सीजीपीए, ठीक है? ऐसे आपने आपने अक्सर सुना ही होगा कि लड़कियों के मार्क्स बहुत ही ज़्यादा आते हैं पर खैर मजाक ही कर रहा हूँ मैं, इसलिए क्योंकि वो लोग ना अच्छे से लिखते हैं, उन लोग का हैंड राइटिंग भी अच्छा होता है। हाँ, ये एक अलग फैक्टर है, हैंड राइटिंग भी थोड़ी अच्छी होती है तो चल जाती है। तो कुछ बातें आपने नोट कर रखा होगा जो कि मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस से ये सभी बातें रही है। उसके बाद मैं आपने बताता हूँ कि मैंने फर्स्ट सेमेस्टर में कितना एसजीपीए गेन किया, तो 7.33 एसजीपीए था, और सेकेंड सेमेस्टर में 8.14 एसजीपीए था, और ओवरऑल जो सीजीपीए बना 7.74 सीजीपीए बना। दिस इज ओनली हैपन, आई हैव प्रिपेयर्ड माई एग्जाम ओनली फॉर द एग्जाम पीरियड, जो कि 1 महीने के आते हैं ना, 1 महीने लॉन्ग पीरियड का डे रहता है, जिसमें से वीक में एक एग्जाम होते हैं, तो 4-5 दिन का गैप रहता है, ओनली फॉर दोज पीरियड। हाँ, ऐसा नहीं था, मुझे सिलेबस की नॉलेज थी क्योंकि मैं कॉलेज तो अक्सर जाता ही रहता था,
75% अटेंडेंस तो आपको पूरा करना ही है। तो वहाँ पर मुझे सब टॉपिक्स का अच्छे खासे नॉलेज हो जाते थे और मैथमेटिक्स के सवाल कुछ प्रैक्टिस हो जाते थे, ईडी के सवाल प्रैक्टिस हो जाते थे। तो कुछ इस तरीके से मेरी अप्रोच रही थी और मैंने इस तरीके से बहुत ही कम टाइम में अपने एग्ज़ाम्स को प्रिपेयर करा था, ठीक है? और जो लास्ट थिंग मैं अगर पूरी समराइज़ करूँ तो मेरे लिए ज़्यादा मायने रखता है थ्योरी के लिए एआई टूल्स का यूज़ करना। कुछ ना समझ में आए तब मैं यूट्यूब पे जाता हूँ, ठीक है? मैक्सिमम एआई टूल्स का ही यूज़ करता हूँ और वहाँ से मैं नोट्स बनाता हूँ। हाँ, नोट्स बनाने के टर्म्स में मैंने बहुत सारे रेफरेंसेस भी चेक करता हूँ, ठीक है? तो रेफरेंसेस भी ध्यान में रखता हूँ क्योंकि अपलोड करने रहते हैं, लेकिन आपको 90% तक की क्लैरिटी मिल जाती है, ठीक है? दूसरी चीज़ न्यूमेरिकल पोर्शन के लिए आप यूट्यूब का ट्राई करें। तीसरी चीज़ एक मैं और टिप्स दूँगा कि आप ना एटलीस्ट सवाल को छोड़े मत, अटेम्प्ट ज़रूर करें और ऐसा भी नहीं कि सिर्फ आप लिमिटेड सवाल करके ही जाओ। जो नए सवाल भी आते हैं ना उसको एटलीस्ट देख लो। अगर आपको लगता है इंपॉर्टेंट नहीं है बट एआई टूल्स का यूज़ करके आंसर देख लो। जब आपके पास थोड़ी-सी नॉलेज होती है ना तो आप पेपर पे लिख लेते हो। तो देयर विल बी नेग्लिजिबल चांस है कि आप एग्ज़ाम में पास ही ना हो। आप ज़रूर पास हो जाओगे, आपके अच्छे मार्क्स आ जाएँगे, ठीक है? इवन आई माई सेल्फ हैव डिड इट, ठीक है? अभी मैं कर भी रहा हूँ वैसी चीज़ों एंड अलोंग साइड जो भी मेरे हसलिंग काम है, जैसे कि यूट्यूब ध्यान देना, उसके बाद डीएसए देना, फिर डेवलपमेंट। अभी मैं करंटली डेवलपमेंट पे काम कर रहा हूँ। फिर उसके बाद अब यूट्यूब थोड़ा ध्यान देना, फिर इंग्लिश फ्लुएंसी पे ध्यान देना। तो ये सारी चीज़ें मैं करता हूँ, तो एकेडमिक पोर्शन का बहुत ही कम टाइम मिलता है, तो इसलिए मेरी अप्रोच ये रहती है कि चलो हर सब्जेक्ट से 20-25 क्वेश्चन निकालो और ये तरीके फॉलो करता हूँ मैं, तो मैं चांसेस है कि बहुत अच्छे मार्क्स ला पाऊँगा। लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि एकेडमिक्स को इम्पोर्टेंस देना, तब ये टिप्स और जो चीज़ें हैं काम में आएँगी, क्योंकि अक्सर जो हम होते हैं अपनी प्रायोरिटी कुछ अलग सेट कर रहे होते हैं। हम कुछ अलग चीज़ों में ज़्यादा ध्यान देते हैं, तो इसलिए एकेडमिक्स पर ध्यान नहीं देते। एकेडमिक्स इम्पोर्टेंट ही इसलिए होती है क्योंकि हम ऑन कैंपस की अपॉर्चुनिटी ज़्यादा लें, एक हार्ड वर्किंग पर्सन के भी रूप में आएँ, ठीक है? कि ये पर्सनली मैं ये भी बिलीव करता हूँ कि ठीक है, इतने प्रेशर में जब मैं इसको झेल रहा हूँ ना, तो एकेडमिक्स भी झेल ही लूँगा, क्योंकि वहाँ पे आपके हार्ड वर्किंग असाइन करती है, ठीक है? लास्ट थिंग दैट इज़ इफ यू हैव ऑलरेडी सम काइंड ऑफ द पर्पस, यू विल टैकल ऑल ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ योर लाइफ, ठीक है? लास्ट मेरा मैसेज यही है कि आपके पास अगर कुछ चीज़ है, कोई गोल, कोई विज़न, सो आप सारी चीज़ों को हैंडल कर लोगे। प्रॉब्लम आएगी बट यू कुड बी रिकवर। सो दैट्स द होल नॉलेज, होल एक्सपीरियंस इज़ माय फर्स्ट ईयर हाउ आई डिड दिस, ठीक है? सो दैट वाज़ ऑल। आई होप, आई विश कि ये वीडियो आपको बहुत ही इंसाइटफुल लगे एंड व्हाटएवर टॉपिक्स यू वांटेड टू टेल मी कि मेक अ वीडियोज़ ऑन इट, सो प्लीज़ ड्रॉप इन द कमेंट सेक्शन, आई विल मेक एज़ वेल, ठीक है? बाकी ये चीज़ जो है आप ज़रूर ध्यान में रखो, आपको बहुत ही हेल्प आउट करेगी, ठीक है? तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।